Hello everyone. Today we will start our further principles given by Henry Fayol. In this video, we will discuss about principle number 8 to principle number 14. Next, 7 principles. In the last lecture, we already discussed the 7 principles. I just recall their names. First principle is division of work. You have to divide the work into small tasks and unit instead of assigning the whole task to one person. The task should be given on the basis of capacity, qualification, and experience. Next, our principle was authority and responsibility. Authority here means power to take decision and responsibility means obligation to complete the job assigned. But this principle says that there should be balance between the authority and responsibility. There is a balance, proper balance should be in between the authority and responsibility. Now, the third one is a discipline. Discipline means you have to follow the code of conduct, rules and regulations of the organization. If you are a superior, then you have to follow at a superior level. If you are a subordinates, you have to follow at that your level also. Means irrespective of all the levels of the in the organization, either top, middle or lower, you have to follow the discipline, the code of conduct or rules and regulation given by the organizational heads. Next, our principle is unity of command. Unity of command says employee should receive the order from one boss, or we can say from one superior. Because if you get the order from different superior, the subordinate will get confused. So one boss, you will receive order from one boss. Next principle is unity of command. What it means? Sorry, next principle is unity of direction. Unity of direction means you have to make one plan in a one direction, and direction should be for organization benefit. So all the members of the organization must be directed towards the one side, one way, not the different way, so that your organization goal will definitely achieve. Our next principle was subordination of individual interest to general interest. It means if you every employee has his own interest, or we can say that his own goal, object towards his life. Organization also has an object towards the organizational growth. But in an organization, the principle says all employee should has one object toward the organizational goal. So if you have a object which is related to organizational growth or goal, then it's okay. If you have a different from the organizational goal, you have to leave that object and you have to put your efforts toward to achieve the organizational goal. So it is a subordination. Subordination means what? Subordination means replace of an individual interest to the general interest. Our next principle was remuneration of a personnel. Remuneration should be fair and adequate, and that gives the maximum satisfaction to the employees. Our next principle is centralization and decentralization. So today we will start with our principle centralization and decentralization. Yes. Centralization means what? Centralization refers to concentration of authority or power in few hands. You can say a power or decision making authority in few hands. We called it centralization. Centralization means if there is in Reliance, अगर कोई भी डिसीजन लेना है, डिसीजन मुकेश अंबानी के हाथ में रहेगा, कोई भी और अथॉरिटी वहां डिसीजन नहीं ले पाएगी, इसी को बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन. Decentralization means what? Decentralization means evenly distribution of power every stage or every level of management. Evenly आपने पावर का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सारे मैनेजमेंट पे. मतलब कुछ पावर आपने मैनेजर को दे दिया है, कुछ पावर असिस्टेंट मैनेजर को दे दिया है, कुछ रीजनल मैनेजर को दे दिया है, रीजनल मैनेजर में बहुत सारे स्टेट हेड्स को आपने पावर दे दिया है, इसी को डिसेंट्रलाइजेशन बोलेंगे. But principle says there must be combination of both depending upon the nature and size of organization. For example, अगर आपका किराने की शॉप है,
वहां पे सेंट्रलाइजेशन काम करेगा, क्योंकि सिंगल ओनर होगा, शॉप छोटी रहेगी, डिसीजन एक पर्सन के हाथ में रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। बट रिलायंस इंडस्ट्री जैसी अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे सेंट्रलाइजेशन से काम नहीं चलेगा, ना ही डिसेंट्रलाइजेशन से काम चलेगा। क्यों? क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में खुद अंबानी के पास पूरा पावर नहीं रहेगा। तो कुछ डिसीजन अगर आपको लेना है, लाइक शेयर्स इशू करने हैं, लाइक इन्वेस्टमेंट लेना है, इन्वेस्टमेंट कहीं करना है, न्यू फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, ये डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे। बट कहीं छोटे से शहर में किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट करना है, मैनेजर को अपॉइंट करना है स्टोर के, ये सब कुछ जो है वो हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो ले सकते हैं। तो देयर शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट? पॉजिटिव इफेक्ट ये रहेगा, फास्ट डिसीजन रहेंगे, वर्किंग स्मूथ हो जाएगी, कंट्रोल रहेगा टॉप मैनेजमेंट का सब जगह, और दोनों के लिए ही अच्छा है। टॉप मैनेजमेंट के लिए भी अच्छा है क्योंकि ज्यादा वर्क बर्डन नहीं आता टॉप मैनेजमेंट पे। सबऑर्डिनेट के लिए भी अच्छा है कि डिसीजन डिले नहीं होता, डिसीजन जल्दी से हो जाता है। अगर वायलेट करोगे, अगर आपने नहीं यूज किया इस प्रिंसिपल को, तो व्हाट विल हैपन? द कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन से क्या होता है? डिसीजन डिले होते हैं, और डिसेंट्रलाइजेशन से अथॉरिटी को मिसयूज कर सकते हैं। ऊपर देख लेना, एक मैंने एक चार्ट दिया है आपको एक पिक्चर के फॉर्म में, उसको देखना। ऑथोरिटी सेंट्रलाइजेशन पूरा कहाँ होगा? जहां कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन, जहां ऑथोरिटी डेलीगेट नहीं होगी, ऑथोरिटी दी नहीं है आपने, तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन है। बट अगर आपने ऑथोरिटी को डेलीगेट किया है तो कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन है। तो द थिंग इज दैट द डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन अपना कहाँ आएगा? मिड ऑफ दैट पिक्चर, जहां पे कुछ ऑथोरिटी डेलीगेट की होगी, कुछ ऑथोरिटी डेलीगेट नहीं की होगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन्स को मैं स्टार्ट करता हूं पिक्चर से। पिक्चर आपको नजर आ रहा है, देयर इज एन फ्यू पीपल, ए इज अ हेड, बी और पी जो है इस ए के अंडर में सबऑर्डिनेट है, बी और पी के नीचे सी और क्यू जो है वो उसके सबऑर्डिनेट है, सी और क्यू जो है वो डी सी का सबऑर्डिनेट है, आर क्यू का सबऑर्डिनेट है, और ई जो है डी का सबऑर्डिनेट है। अब जो भी चेन चल रहा है वो चेन चल रहा है बेटा सबऑर्डिनेट से सबऑर्डिनेट के ऊपर। मतलब जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, अगर ए को कोई बात ई तक पहुंचानी है, ए को कोई बात ई तक पहुंचानी है, तो ए बी को बोलेगा, बी सी को बोलेगा, सी डी को बोलेगा, और डी ई को बोलेगा। ई को भी ऐसे कोई बात बी तक पहुंचानी है तो वो डी को बोलेगा, डी सी को बोलेगा, और वो बी को बोलेगा। इसी को बोला जाता था स्केलर चेन। स्केलर चेन से क्या होता था बेटा? सुपीरियर सबऑर्डिनेट से बात करते थे और सबऑर्डिनेट इमीडिएट हुआ करता था। ऐसा नहीं कि एक छलांग लगा के आप अगले सबऑर्डिनेट से बात करोगे, आप जानते भी नहीं उसको, आपका जो इमीडिएट सबऑर्डिनेट है आप उससे बात करोगे, वो सबऑर्डिनेट फर्दर बात करेगा, इस तरीके से बातचीत चलती थी। तो ये बोलता था प्रिंसिपल चेन। इससे क्या होता था? डिग्निटी मेंटेन होती थी, ट्रांसपेरेंसी भी रहती थी, और पता होता था कि कौन सी बात किसने कही है और कहां तक जाएगी, ये चीज रहती थी। अब इसको जरा डेफिनेशन पढ़ लें। इसका मतलब क्या होता है? लाइन, लाइन क्यों बोल रहे हैं बेटा? क्योंकि एक लाइन में चल रहा है, तो लाइन ऑफ अथॉरिटी और लाइन ऑफ सुपीरियर्स फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक, इसका ये मतलब होता है। चेन मस्ट बी फॉलो विदाउट एनी स्कीप, स्कीप नहीं होना। लाइक मैंने बोला ई को बात करनी है बी से, तो डी और सी भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सी को स्कीप करके डी सीधा बी के पास चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो इस तरीके से क्या रहता है? चेन फॉलो करनी रहती है, स्कीप नहीं कर सकते आप। गैंग प्लैंक का मतलब क्या होता था? अब इसमें क्या डिले हो जाते थे डिसीजंस में? फॉर एग्जांपल यहाँ पे दोनों ही अथॉरिटी है, रैंक जो है ना, रैंक बी और पी की सेम है, सी और क्यू की सेम है, डी और आर की सेम है, ई और एस की सेम है, सेम रैंक वाले बंदे। बात ये हुई, डी जो है जिसका रैंक सेम है उसको आर तक बात पहुंचानी है, बट आर का जो सुपीरियर है वो क्यू है, क्यू का पी है, पी का ए है। इधर अगर देखूंगा तो डी का सुपीरियर सी है, सी बी तक पहुंचाएगा, बी ए तक पहुंचाएगा। तो बात इस तरीके से जाएगी कि डी को आर तक अगर बात पहुंचनी है और स्केलर चेन फॉलो करना है, तो डी जो होगा वो सी तक बात पहुंचाएगा, सी जो होगा वो बी तक, बी ए तक बात पहुंचाएगा, अब फिर ए पी तक ये बात कहेगा, पी क्यू तक कहेगा, और क्यू आर तक ले जाएगा। ये स्केलर चेन फॉलो करेंगे। बट इसने क्या किया? इसने गैंग प्लैंक का मतलब ये रहा कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो यू टेक अ शॉर्टकट चेन इज परमिसिबल विदाउट फॉलो द स्केलर चेन। तो अगर डी को बात करनी है आर से तो वो बात कर सकता है सीधे तौर पे। एक चीज यहाँ पे मैं नोटिस कर दूं आपको, गैंग प्लैंक में बुक में होगा नहीं होगा, आप जो है सेम ऑथोरिटी वाला बंदा बात कर सकता है सेम लेवल पे। इसी एग्जांपल को ध्यान से सुनना और समझना। अगर फॉर एग्जांपल के लिए
सी को बात करनी है पी से, सी को बात करनी है पी से, तो सी सीधा पी से नहीं करेगा कि गैंग प्लैंक चलेगा, नहीं, सी को ये बात पहुंचानी पड़ेगी बी पे, बी के पास। और बी जो है, बी और पी का अथॉरिटी सेम है, सेम जगह पे है, तो बी फिर पी से बात करेगा। इसी तरीके से अगर मान लो ई को बात करनी है क्यू से, ई को बात करनी है क्यू से, तो ई इसके लिए फॉलो क्या करेगा, ई डी तक पहुंचाएगा, डी सी तक पहुंचाएगा, और सी फिर बी तक ना पहुंचा के सीधा क्यू से बात कर देता है, क्योंकि दोनों ही सेम पोजीशन पे है, डिग्निटी सेम है। तो इस तरीके से बात हो सकती है। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगी बेटा, पॉजिटिव होगा, सिस्टमेटिक फ्लो होगा इंफॉर्मेशन का, क्योंकि देखो एक बंदे के बाद दूसरे बंदे तक जा रही है, कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। ग्रेप वाइन की यहाँ पे प्लेस नहीं है, ग्रेप वाइन का मतलब होता है अफवाह, ह्यूमर, तो ह्यूमर नहीं फैलेंगे। क्यों नहीं फैलेंगे, क्योंकि पता होगा ना यार कि डी तक बात पहुंची है तो बट ऑब्वियसली सी ने पहुंचाई होगी, सी तक बात पहुंची है तो बी ने पहुंचाई होगी, तो पता रहता है कि किस बंदे ने क्या बात बोली है। ग्रेप वाइन अफवाह तब फैलती है जब आपको सोर्स पता ना हो, यहाँ पे सोर्स पता चल जाता है, इस वजह से इस स्केलर चेन का यूज हुआ था, बिकॉज you will get the actual source of the information. Next, if you violate this principle, what will happen? A communication gap will occur. Clarity नहीं रहेगी कौन अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में, और मेनी टाइम्स क्लेशेस हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि स्केलर चेन क्यों जरूरी है, गैंग इसका पार्ट है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि भैया कमांड दे रहे हो, ऑर्डर यहाँ पे मतलब होता है अरेंज इन सिस्टमेटिक मैनर। तो ऑर्डर का मतलब रेफर्स ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर का और मटेरियल का दोनों का ही अरेंजमेंट ऑर्डरली करना पड़ेगा और करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि देखती हो ना आप घर पे भी जितना भी सामान होता है वो सामान मम्मा कितना ऑर्डरली रखती है, पता होता है कि ये वाला सामान यहाँ रखा होगा, उनको पूछते से ही पता हो जाता है कि अच्छा मेरा ये सामान देखा क्या आपने, ये गुड्स देखा क्या, ये कपड़े देखे क्या, वो सीधा उसका प्लेस बता देती हैं। क्यों, क्योंकि वो ऑर्डरली अरेंजमेंट करती है। ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे ही होना चाहिए, पर ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज और बोलते हैं, मेन शुड बी ऑर्डरली अरेंज। मेन को भी ऑर्डरली क्यों करना है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूँ सेल्स का मैनेजर है, सेल्स के मैनेजर में सेल्स के डिपार्टमेंट में होना जरूरी है। पता चला सेल्स के मैनेजर को आपने बिठा दिया फाइनेंस के डिपार्टमेंट में, बंदा आया सेल्स के मैनेजर से काम करने के लिए, वो ढूंढ रहा है उस बंदे को, और उसको थोड़ी पता है वो फाइनेंस में बैठा हुआ है, तो क्या वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का चक्कर लगाएगा क्या, नहीं। तो मेन शुड बी अरेंज ऑर्डरली। सेल्स का बंदे हैं, सेल्स डिपार्टमेंट दे दो उनको, एक प्लेस बता दो, ये प्लेस तुम्हारी, यहीं पे तुम्हारा रहेगा। कोई बाहर वाला बंदा भी आएगा, कोई अननोन पर्सन भी होगा, वो बोर्ड देख के समझेगा दिस द प्लेस ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, वो सेल्स वाले से काम होगा, वो सीधा चला जाएगा। मटेरियल शुड बी एट अ प्लेस, क्योंकि जब इमरजेंसी आती है तो फिर मिलता नहीं है सामान, तो उसको भी आपको सिस्टमेटिक भी रखना है और ऑर्डरली भी प्लेस करना है। फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन ऑर्गेनाइजेशन, कोई इशू नहीं है। पॉजिटिव क्या रहेगा बेटा, वेस्टेज नहीं होता टाइम का, सर्च ऑफ मैन एंड मटेरियल, ठीक है, स्मूथ और सिस्टमेटिक वर्किंग होती है ऑर्गेनाइजेशन में। पर नेगेटिव क्या रहता है, नेगेटिव इन द सेंस इफ यू वायलेट, टाइम वेस्टेज हो जाएगा मैन को ढूंढने में। दूसरा चीज, अगर कोई मटेरियल है उसको ढूंढने में तो टाइम वेस्टेज बहुत होता है। दूसरा चीज, आप राइट पर्सन से कांटेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको उसकी प्लेस पता नहीं होगी, टाइम का बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो इस वजह से क्या किया जाता है, अरेंजमेंट ऑर्डरली किया जाता है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, सॉरी, इक्विटी का मतलब होता है बेटा सारे एम्प्लॉय को इक्वल ट्रीट करना, मतलब किसी भी एम्प्लॉय के साथ भेदभाव नहीं करना, विदाउट अ बायसनेस आप वर्क करेंगे। तो इक्विटी का मतलब टू काइंड फेयर इक्वल ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉय विदाउट अ बायसनेस। ये सब, ये जो एप्लीकेशन है ये सेम डिसिप्लिनरी रूल सबके लिए एप्लीकेबल रहेगा, किसी भी तरीके की बायसनेस नहीं रहेगी। चाहे मैनेजर का लड़का वहां पे एम्प्लॉय है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो रूल सबके लिए है वो रूल उसके लिए भी लगेंगे। डायरेक्टर्स के रिलेशन में कोई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रूल शुड बी अप्लीकेबल टू ऑल विदाउट एनी बायसनेस। Equity means no discrimination on the account of sex, religion, language, caste, belief or nationality. There should be no discrimination. What are the positive effects? Positive effects are increase employee satisfaction, क्योंकि उनको दिखेगा यार कि वो डायरेक्टर्स का लड़का है, वो भी मेरे साथ बैठ के खाना खा रहा है, काम कर रहा है, तो उसको अंदर रहेगा ना यार कि हाँ यहाँ पे सबके लिए रूल्स इक्वल है।
उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, मोटिवेट होगा, मॉरल बूस्ट होगा, तो ये सब पॉजिटिव इफेक्ट है. व्हाट आर द नेगेटिव, और इफ वी वायलेट इट तो व्हाट विल हैपन, डिससेटिस्फेक्शन आएगा, एम्प्लॉइज का टर्नओवर बढ़ेगा. टर्नओवर का मीन्स क्या, एम्प्लॉय छोड़ छोड़ के जाएंगे. टर्नओवर का मतलब मैंने समझाया है, एम्प्लॉय छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन जाते हैं तो उनका टर्नओवर बढ़ जाता है. अनहेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर और सबऑर्डिनेट, क्योंकि आप अगर फेयरली जजमेंट नहीं करोगे, फेयरली ट्रीट नहीं करोगे एम्प्लॉइज को, तो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में क्लेशेस होंगे. नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल. मतलब क्या इसका, इसका मतलब ये होता है कि आपको फ्रिक्वेंटली टर्मिनेट नहीं करना है एम्प्लॉइज का, ना ही उनको ट्रांसफर करना है. हमने अभी बोला कि हमें क्या नहीं करना है, हमें एम्प्लॉइज का टर्नओवर नहीं बढ़ाना है. अगर एम्प्लॉइज का टर्नओवर बढ़ेगा तो कंपनी के लिए कॉस्ट बढ़ती है, कंपनी को फायदा नहीं है इसमें, कंपनी को नुकसान है, क्योंकि न्यू एम्प्लॉय आएगा, उसको सेटल होने में टाइम लगेगा, उसका ट्रेनिंग करवाएंगे हम लोग, R&D होगा, ये सब कुछ प्रोसेस होगा. उसके बाद जब वो सेटल हो जाता है और आप उसको निकाल लेते हो तो कंपनी की कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि तब तक तो उसने काम नहीं किया, फ्री की सैलरी ली है. जब काम करने की बारी आई तब उसको टर्मिनेट कर दिया, तो ये गलत है. ट्रांसफर कर दिया, वो नई जगह जाएगा, फिर सीखेगा, ये भी गलत है. नेक्स्ट थिंग इज दैट दूसरे जो एम्प्लॉय होंगे वो ये न्यूज पहुंचाएंगे आगे, बाहर बाहर साइड जाके, यार ये कंपनी अच्छी नहीं है यार, या टर्मिनेशन कर देते हैं बहुत जल्दी. इससे क्या होगा, कंपनी की रेपुटेशन पे नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, आपकी जॉब सिक्योरिटी चली जाएगी. जब जॉब सिक्योरिटी नहीं होती तो बंदा फिर मन लगा के काम नहीं करता, वो उतने एंथुसियाज्म से काम नहीं करेगा. तो इस वजह से क्या बोला जाता है, द टेन्योर ऑफ द पर्सनल. पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉय, टेन्योर का मतलब होता है टाइम या फिर ड्यूरेशन, और स्टेबिलिटी का मतलब होता है शुड बी स्टेबल. तो स्टेबिलिटी ऑफ अ टेन्योर ऑफ अ पर्सनल का मीन्स द एम्प्लॉइज ऑफ इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव स्टेबिलिटी इन देयर टाइम, और वी कैन से दैट इन देयर जॉब. व्हाट आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट इज एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, क्योंकि वो सिक्योर महसूस करेंगे अगर, तो उनको लगेगा, और उनके काम में बढ़ोतरी होगी. वेस्टेज नहीं होगा टाइम का, नहीं रिसोर्सेज का. अगर वायलेट करोगे तो रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा, फ्रस्ट्रेशन और डिससेटिस्फेक्शन आएगा एम्प्लॉइज के बीच में. तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट है जो हमें मिलेंगे अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे. इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का नाम से समझ में आ रहा है, इनिशिएटिव का मीन्स टेकिंग फर्स्ट स्टेप विथ सेल्फ मोटिवेशन. तो मैनेजर जो होता है कोई भी आइडिया देता है तो वो सजेशन ले एम्प्लॉय से आइडिया ले, और चाहे तो वो इनिशिएटिव भी ले. जैसे मोदी जी का आपने एक वीडियो देखा होगा, बहुत आया था, बीच पे उनका सफाई करते हुए वीडियो आया था. वो बीच पे थे और बीच पे से कुछ उठा रहे थे, कचरा वगैरह. उन्होंने क्या किया, वो वीडियो अपलोड किया. इससे क्या लगता है कि जो रूल्स बना रहा है वो भी उसको फॉलो कर रहा है. दैट इज द इनिशिएटिव टेकन बाय द मोदी जी. दूसरा एक वीडियो आपने देखा होगा योगा करते हुए, उन्होंने बोला योग दिवस हम लोग मनाएंगे, और योगा करते हुए वीडियो डाला. व्हाट दे डिड द इनिशिएटिव. तो आपको फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, वो भी खुद के मोटिवेशन से, कोई धक्का देके आगे नहीं करेगा. जैसे हमारे स्कूल में अगर कोई फंक्शन होता है तो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, सेल्फ मोटिवेशन से वो हाथ खड़ा कर देता है कि सर हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, हम लोग करेंगे. दैट वी कॉल्ड इनिशिएटिव. ऑर्गेनाइजेशन में भी इनिशिएटिव होना चाहिए कि कोई प्लान्स बनाया है, कोई रूल्स रेगुलेशन नए लेके आए हैं, या कोई प्लानिंग हुई है, तो आप इनिशिएटिव लो. आप इनिशिएटिव लोगे तो और लोग भी आपको देख के इनिशिएटिव लेंगे. पॉजिटिव थिंकिंग क्या होगी, डेवलप द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस इन द एम्प्लॉइज, क्योंकि एम्प्लॉय को लगेगा कि भैया एक दूसरे से जुड़ेंगे, कि ये भी कर रहा है काम, मैं भी करूंगा, ये इनिशिएटिव ले रहा है मैं भी लूंगा, मैनेजर खुद ले रहा है तो सबऑर्डिनेट भी लेंगे, तो ये फायदा होगा. नेक्स्ट थिंग, एम्प्लॉइज अचीव द टारगेट ऑन टाइम इफ द प्लान सेटअप विद देयर कंसल्टेशन. आपने कंसल्ट किया था उससे प्लानिंग में, एम्प्लॉय ने पार्ट लिया था, उसके सजेशन आपने माने हैं और उन सजेशन को मॉडिफाई करके अप्लाई किया. बट जब प्लानिंग स्टेज से आप एग्जीक्यूशन में जाओगे तो वो काम जल्दी होगा, क्योंकि एम्प्लॉय को पता है कि यार हमने ये सजेशन दिए थे, इस तरीके से ही करना है, तो आपका टारगेट जो होगा वो टाइमली अचीव होगा. अगर आप वॉयलेट करोगे तो क्या होगा बेटा, एम्प्लॉय जो होंगे विल नॉट वर्क टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, क्योंकि वो डिमोटिवेट हो जाएंगे. तो इस वजह से इनिशिएटिव काम नहीं करता. नेक्स्ट, नाम बहुत अच्छा है, लेटिन वर्ड है, एक चीज मैंने इसमें नोटिस कर दिया है, दिस इज द लेटिन वर्ड, स्पिरिट डी कॉर्प्स. स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब क्या होता है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनियन इज स्ट्रेंथ.
जितने भी एम्प्लॉय हैं मैनेजमेंट में उन सबको आई की जगह वी के बारे में सोचना चाहिए। देयर शुड बी अ टीम बाउंडेशन। इससे इस ये जो स्पिरिट डी कॉप्स है ना, इससे मुझे एक मूवी याद आती है और आपने देखी होगी, चक दे इंडिया। चक दे इंडिया में स्पिरिट डी कॉप्स की बहुत कमी थी स्टार्टिंग में। आपने देखा होगा पूरी टीम जो होती थी वो आई पे बिलीव करती थी रेदर देन वी। और यहाँ पे हमें वी पे बिलीव करना है। एट लास्ट जो हम लोग गेम विन किए थे वहां पे वी पे बिलीव किया था। क्यों? क्योंकि वहां पे आई की जगह वी आया था। इट ब्रिंग्स द कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, यूनिटी आई थी उनमें, टीम स्पिरिट आई थी। यही कहलाता है द प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉप्स। तो मैनेजमेंट मस्ट encourage or promote the team spirit, unity and harmony, brings the coordination and cooperation, replace I with we, and unity or union is a strength. This is the major or main motto of this principle. Work with team spirit. You have to work with team spirit. What are the positive impact? Positive impact is develop team spirit, achievement of group goals. If you violate, so what will happen? The organization goal may not achieve, no team spirit and more stress on individual. मतलब क्या होगा बेटा? टीम स्पिरिट नहीं होगी तो इंडिविजुअल पे आप फोकस करोगे। और फिर आपने चकने इंडिया तो देखी होगी, नहीं देखी हो तो एक बार देखना, आपको उसके प्रॉक्स और प्रॉन्स नजर आ जाएंगे। So this is all from my side. This is the 14 principle we complete here. You just prepare your notes according to the PDF और book। तो आपको book के थ्रू ही बनाना है। डिफरेंस बिटवीन भी आप लिखना। जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है मोस्ट प्रोबेबली मैं संडे आपको दे दूंगा, तो वो प्रिंसिपल भी कवर हो जाएंगे हमारे, तो थोड़ा सा सिलेबस जल्दी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा।